Hello, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. So basically, I think day after tomorrow, that is 7th of August, would be the last day of our training. Um, see, this training was purposely for the NBD, that is New Business Development. Okay. Now, practically, it is not possible only just 1 hour a day in the morning and to cover up all the products which we have. It's not possible. So that's why the purpose was that, see, we presume that you are from the sale field. So you might be already knowing the other products like AOT, PT, and all that. Those are the products which we presume that you would be already knowing, and that's why we have not taught, like total protein, albumin, SGOT, SGPT, all that are very basic products. So we presume that you might already be knowing, and that's why we have not touched that. Basically, the purpose of this focus product is that you should focus more on these products. So it's a win-win for you and Accurex both. Basically, see, some products are, the combo product. If you focus on other main products, rest products will automatically go, right? So I'm posting the quiz link in the folder. Start joining into the quiz. So today's our quiz will be on Turbiletics, CRP. Do you know what is the scheme going on related to CRP currently? Yes, ma'am. CRP के साथ वो क्रेटनाइन का ऑफर कंटिन्यू Very CRP. good. Very nice. Yeah. Mr. Devraj, please join. Diptanu ji. Yes, Mr. Devraj, please join. Madam, actually my mobile display is having problems, so I'm able to join, madam. Uh, okay. So should I wait for you or should I start the quiz? You can start, ma'am. Okay, fine. दीप्तानु जी आप कहाँ हैं? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ दीप्तानु. Okay, fine. Then let's start with today's quiz, only with 4 team members. Yeah. So what is the principle of turbulent CRP? Very nice. Very good. What is the normal reference range? Normal reference range. Okay. वेरी गुड. सब लोग ने पढ़ाई की लगती है मुझे. What does a high CRP value typically indicate?
अच्छा, मेरे एंड से कोई डिस्टर्बिंग आवाज आ रही है क्या? मतलब कोई सी, हाँ बेसिकली। ओके। मेरे यहाँ पे बाजू में बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, तो आप लोग को वो आवाज आ रही है? कोई मुझे बताइए। नो मैम। नो मैम। नो, इट इज नॉट डिस्टर्बिंग, राइट? ओके कुछ नहीं आ ओके, रही आई मैम, सही गॉट। है। ओके ओके, चलो जी, गुड। नहीं तो मुझे सोचा कि सब बंद कर दूं। वेरी नाइस। व्हाट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ सीआरपी किट? सीआरपी किट में, उसमें इसमें से कौन सा चीज होता है? वाह, आज तो बढ़िया हो गया। ओके। सीआरपी इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑर्गन इन रिस्पॉन्स टू इन्फ्लेमेशन? सीआरपी कौन सा ऑर्गन प्रोड्यूस करता है जब बॉडी में इन्फ्लामेशन हो, उसके अगेंस्ट, उसका रिस्पॉन्स में? ओके, वी आर हाफ वे। आई थिंक अभी अभी तक ऐसा अच्छा क्विज नहीं गया है कि सभी ने सभी करेक्ट दिए हो। मिस्टर वेंकटेश फॉलोड बाय मिस्टर बलविंदर। अच्छा है ना, हम चार ही लोग हैं और चारों के चारों विनर्स हो गए। वेरी नाइस। लेट्स मूव अहेड। Which analytical method is used to measure the turbidity in the test? अगर कोई रिएक्शन के बाद टर्बिडिटी आई है तो इसमें से क्या मेथोडोलॉजी हम यूज करते हैं? वेरी गुड। Which type of reaction occurs between CRP and latex particles in this method? सीआरपी और लेटेक्स पार्टिकल के बीच में कौन सा रिएक्शन हो रहा है? वेरी नाइस। Hemolyzed or lipemic sample do not interfere with CRP turbidimetric test. Hemolyzed या lipemic sample यूज करें वो इंटरफियर नहीं करता है। ट्रू और फॉल्स? ओ, यहाँ पे चीजें गलत हो गया, फॉल्स आना चाहिए, इंटरफियर नहीं करता है। CRP is a marker only for viral infections. True or false? I mean, yes or no? सिर्फ वायरल इन्फेक्शन में ही सीआरपी बढ़ता है? ये, so let us see what is the Ledabo position. Yeah, we have, acha, one more question is left. Ah, okay. The turbilatex CRP test indicates CRP levels in the sample by measuring the increase in dash. क्या बनता है जब रिएक्शन होता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, तो क्या होता है? वेरी गुड। So yes, our winner is Mr. Venkatesh, followed by Vaibhav, Mr. Balvinder, and Mr. Arel. Congratulations to all four of you. थैंक यू मैम। Yeah. अच्छा लगता है ना ऐसे टॉप में नाम आए तो, है ना वैभव? यस मैम। हाँ, फिर देखो, सुबह सुबह अच्छा जाएगा, आप अच्छे से स्माइल करोगी तो दिन भी फील्ड में अच्छा जाएगा। जी मैम। Okay, so with this, let us start with Spera. For Spera, my basic
my basic idea for Spera is to run through our brochure. I always feel कि brochure for Spera we should know our brochure. Already Spera का जो Saturday की training होता है उसमें Spera का training दे दिया गया है. But are you all aware of it? सब लोग को पता है? Spera का training attend किया है? नहीं मैम, नहीं किया है हर्षद जी? नो। फिर Spera की training में आप कहाँ थे? स्पेरा का कहाँ हुआ है मैम? मैम एक्सप्रेस का किए थे मैम, उसका ग्लूकोमीटर का। ये तो लास्ट की बात नहीं, उसके पहले मैं लास्ट 4 मंथ से सैटरडे में ट्रेनिंग दे रही हूँ. नहीं तो मैम मैं नहीं था। हाँ, नो प्रॉब्लम. तो लेट्स जस्ट फोकस. सो इवन जैसे मैं या या प्लीज से वैभव. कुछ नहीं मैम, वो 27 मेरा वर्किंग डे था मैम, उतना स्टार्टिंग पीरियड में मैं उतना पता नहीं था क्या होता है ये सब। तो फर्स्ट एक आध जो सा छोटा भी मेरा, ये लास्ट में सैटरडे में पूरा ज्वाइन किया था। हम्म. जी। कोई बात नहीं. ओके, सो लेट अस let us focus on Spera today. Yeah. So first of all, let us start. You all know what is Spera? नो मैम, That मेरा is फर्स्ट our क्वेश्चन यही था, मैं कह रहा था। हाँ. ओके. सो स्फेरा हमारा फुल्ली ऑटोमेटेड बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर है. ठीक है, फुल्ली ऑटोमेटेड बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर. इसका नाम है स्पेरा एम. हमने जब स्पेरा लॉन्च किया, व्हेन वी लॉन्च दिस स्पेरा, only this was the name. In last couple of years we have introduced this M. What does M means? M means for mangrovius. Now mangrovius क्या होता है बेसिकली? मैंग्रोवियस ना एक प्रकार का कैलिफोर्निया वगैरह में पाया जाने वाला एक ये ट्री है. ट्री, पेड़. अगर ये आप ट्री को देखेंगे तो वो ना अपने जड़ों से कनेक्टेड होता है. यानी एक ट्री की जड़ दूसरे ट्री के साथ कनेक्टेड होती है. दूसरे ट्री की जड़ पूरा वो कोस्टल एरिया में पाया जाता है, यानी जहाँ पे नदी वगैरह फ्लो हो रही है वहां पे. सो मैंग्रोवियस से हमने ये एम नाम चुराया है. ना वाई वाई ये एम मैंग्रोवियस मुझे वाई एम. सो जैसे मैंग्रोवियस पेड़ एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, वैसे हमारा स्पेरा, हमारा जो आईक्यूसी टीम है उससे कनेक्टेड है. यानी अभी तक जितने भी स्पेरास मार्केट में लॉन्च हुए हैं, मार्केट में इंस्टॉल हुए हैं, वो सब थ्रू ब्लूटूथ और थ्रू थ्रू वाईफाई और थ्रू क्लाउड कनेक्टिविटी हमारे आईक्यूसी से कनेक्टेड है. तो हम यहाँ से अपने जो मास्टर स्पेरा में जो जो चेंजेस करते हैं वो बाकी सारे स्पेराज में रिफ्लेक्ट होते हैं. यहाँ तक कि वहाँ कोई इंडिविजुअल, कोई कस्टमर को कोई लेवल का प्रॉब्लम आता है जो हमारे इंजीनियर्स भी सॉल्व नहीं कर सकते, तो नाउ देन व्हेन अवर आईक्यूसी कम्स इनटू पिक्चर तो वो एक्सेस ले सकते हैं वहां के डेटा का. ओके, होप आई एम मेकिंग सेंस. यस समझ मैम। में आ रहा है? अच्छा, आज का यस मैम। ट्रेनिंग सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में करना है? नो, वी हैव वेंकटेश, राइट? ओके. नो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कह सकते हैं। बोलने में थोड़ा इंग्लिश, दिक्कत आती है, समझने में तो मैं समझाता। हाँ नहीं. Venkatesh is from our South team, so we have to ensure that he also understands. नहीं तो मैम, इंग्लिश तो में आप पूरा कर सकते हैं मैम, कोई भी दिक्कत। ओके, तो स्फेरा एम. ओके, अभी ठीक है, समझ में आया? स्फेरा इज अवर फुल्ली ऑटोमेटेड एनालाइजर. एम स्टैंड्स फॉर मैंग्रोवियस. मैंग्रोवियस एक पेड़ का नाम है. ठीक है. वी नॉर्मली से दैट स्फेरा इज द फरारी ऑफ अवर लेबोरेटरी. फरारी क्यों बोलते हैं, किसी को पता है? फरारी का क्या फीचर्स है ये बताओ. fastest sports car. Okay, yeah. Okay. Yes, Aniket. Anything else? The Spera is known for its speed, right? Also, Spera is known for its quality. ठीक है? Sorry, Ferrari is known for its quality.
कि so similarly our Sphera also comes with lot and lot of unbelievable features. Okay, so let us explore one by one. First, our Spera, if we have a throughput of 200 tests, ठीक है? Throughput समझ रहा है सबको? Everyone know what is throughput? नो मैम। यस यस मैम। ओके, जिसने yes बोला वो दूसरे अपने कोलिग को समझाए, चलो। थ्रूपुट इसका जैसे ये है 200 थ्रूपुट है, तो 1 आवर में ये 200 टेस्ट परफॉर्म करता है अपने। वेरी गुड बलविंदर जी। वैभव समझा? यस मैम। हाँ, जैसे अपना सीबीसी का बात किया था, तो सीबीसी का थ्रूपुट कितना था? 360 का, 1 घंटे में 60 सैंपल्स, राइट? यस सिमिलरली ये यस। बार केमिस्ट्री है, फुल्ली ऑटो है, तो इसका थ्रूपुट है 1 आवर में 200 टेस्ट। ओके, मोस्ट यूनिक पॉइंट इज दिस, हमारे स्पेरा में 1 घंटे में 1 लीटर से भी कम पानी लगता है। आप बाकी कोई कंपनी का उठा लो, कम से कम 3 to 4 लीटर्स लगते हैं पानी। ओके, तो फॉर अवर स्पेरा दिस इज द यूएसपी, unique selling point of our product is it is having a water consumption of less than 1 liter per hour. Okay, इससे बेनिफिट क्या होगा कस्टमर को? सी नॉर्मली जहां पे फुल्ली ऑटो होता है उनको डिस्टिलाइज या डीओएनएस वाटर पैसे दे के खरीदना पड़ता है, राइट? तो नॉर्मली वाटर डजंट हैव एनी कॉस्ट। यहाँ पे आप टेप टेप का पानी नहीं लगा सकते व्हेन इट कम्स टू फुल्ली ऑटो। आपको डिस्टिल या डीऑर्गेनाइज वाटर के 20-20 लीटर के कैन लाके रखने पड़ते हैं, विच इज नॉट पॉकेट फ्रेंडली ऑल्सो एंड नॉट स्पेस फ्रेंडली ऑल्सो। अगर आपके पास छोटी जगह है लेबोरेटरी में और आप 20-20 लीटर के पानी के टंकी लगा देंगे तो जगह ही नहीं बचेगा, राइट? सो इन दैट केस हम बहुत बेनिफिशियल है, राइट? मोस्ट टैप इम्पॉर्टेंटली वाटर वी यूज है, कर सकते हैं सॉरी, इसमें, हम टैप वाटर यूज कर सकते हैं। टैप वाटर नहीं लगता है फुल्ली ऑटोमेटेड में, कोई टैप वाटर नहीं यूज करेगा। दिस हैज टू ओके बी मैम। डिस्टिल वाटर और डीआईएनएस वाटर, क्योंकि टैप वाटर करेंगे तो अंदर के जो ऑप्टिक्स है इंस्ट्रूमेंट के जो स्पेयर्स है वो डैमेज होना जल्दी डैमेज शुरू होंगे। वो 20-50 रुपए पानी का बचाने के चक्कर में पूरे के पूरे स्पेयर रिप्लेस करने पड़ेंगे जो हजारों रुपए के होंगे। ठीक, तो नॉर्मली सी अभी अगेन इट डिपेंड्स आप कौन से लोकेलिटी पे हैं। अगर आप मुंबई में हैं, मुंबई का वाटर इज, आप नल में से निकाल के नॉर्मल भी पी लिया ना आपको कुछ नहीं होगा, बिकॉज वाटर ही इटसेल्फ में जो हम बोलते हैं ना जो घनता या जो हार्डनेस, वाटर में हार्डनेस ऑलमोस्ट नहीं है। इसमें जो डिजॉल्व मिनरल्स है, जो टीडीएस बोलते हैं ना, डिजॉल्व मिनरल्स, वो बहुत कम है मुंबई के पानी में। तो मुंबई के पानी के लिए आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, वही जगह आप लेट्स से सौराष्ट्र चले गए, है ना, गुजरात में सौराष्ट्र, वहां पे बाजू में बहुत नजदीक है, वहां पे रेनफॉल कम होता है, तो वहां का एनवायरमेंट और जो पानी होता है दैट्स वेरी हार्ड। अगर आप नॉर्मल पानी भी, अगर नल में जो पानी आया है या जो नहाने का पानी है, आप अगर गलती से मुंह में लग जाएगा तो ऐसा लगेगा नमक वाला पानी पी रहे हैं। उसमें जो सॉल्ट है, पानी में जो सॉल्ट है वो बहुत ज्यादा डिजोल्व होते हैं। सो वहां पे अगर आपने नल का पानी इंस्ट्रूमेंट में यूज किया, 2 साल 2.5 साल में आपका इंस्ट्रूमेंट के स्पेयर जाने ही जाने हैं। ओके, सो व्हेन आप 6-8 लाख रुपए खर्च करके इंस्ट्रूमेंट लेते हो तो 50-100 रुपए पानी का कोई कंसिडर नहीं करता है, राइट? सो नेक्स्ट इज वी हैव अ 8 स्टेप वॉशिंग सिस्टम। अब वो क्या है आगे देखेंगे। हमारा जो वॉश स्टेशन है, दिस इज कॉल्ड वॉश वॉश स्टेशन है। यहाँ पे ये छोटा सा दिख रहा है ना, दिस इज अ वॉश वॉश स्टेशन। Yes, ma'am. या देन वी हैव 80 reusable UV transmitting bionics cuvette। ये हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। रीयूजेबल, मैं आप हाँ ये स्पीड बताइए। में मैम, ये 200 थ्रूपुट है ना, 1 आवर्स रिजल्ट का है हाँ ना।
हाँ, ओके मैम। नेक्स्ट इज हमारा रीयूजेबल क्यूवेट्स। रीयूजेबल यानी अगर हम नीचे क्यूवेट्स क्यूवेट्स का फोटो, सी दिस आर बॉटल्स, बॉटल्स का सैंपल ट्रे है, दिस इज अ रिएजेंट ट्रे। यहाँ पे एक्चुअली क्यूवेट्स रखनी होती है। ओके, क्यूवेट्स या फिर आप ये ट्यूब्स रखते हैं। सो बेसिकली हमारा जो क्यूवेट्स है दैट इज बायोनिक्स। बायोनिक्स यू नो इट इज नोन फॉर इट्स क्वालिटी। अगर आप बायोनिक्स का प्लास्टिक क्यूवेट्स की बात करेंगे, सबसे पहले हमारे यहाँ कैसा है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम एक एक क्यूवेट चेंज कर सकते हैं। ओके, यानी मान लो सी हर एक क्यूवेट जो होता है, क्यूवेट यानी जिसके अंदर रिएक्शन होगा, यानी सैंपल ट्यूब में से सैंपल लिया, रिएजेंट में से रिएजेंट लिया, और जहां पे मिक्सिंग होता है दैट पार्ट इज क्यूवेट्स। नाउ हमारा जो क्यूवेट्स है, आप ट्रांसिशा का इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए, वो 8 8 का पूरा स्लैब होता है, तो एक खराब हुआ है तो आपको पूरे 8 के 8 रिप्लेस करने होंगे, विच इज वेरी कॉस्टली टू द कस्टमर। बट हमारा जो है वो एक एक क्यूवेट हम निकाल के रिमूव कर सकते हैं, यानी इंडिविजुअल क्यूवेट्स है। तो हमने इंस्ट्रूमेंट बनाया इस हिसाब से कि इट इज ऑलवेज कस्टमर ओरिएंटेड, कहाँ कहाँ कितना कस्टमर को बेनिफिट हो सके। ओके, देन 60 सैंपल पोजीशन एंड अ रिमूवेबल ट्रे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली 60 सैंपल्स कर सकते हैं, एंड एवरी पोजीशन कैन बी अ स्टैट पोजीशन। आपको पता है स्टैट पोजीशन क्या होता है? नो मैम। एनीवन नो स्टैट पोजीशन? स्टैट पोजीशन यानी कहीं पे सिन, रेंडमली हाँ राइट, बोलिए। रेंडमली कहीं पे भी हम रख कर वो कर सकते हैं मैम, मतलब इजीली हाँ, डिटेक्टेबल कहीं पे भी रैंडम एक्सेस है। करेक्ट। सो बेसिकली स्टैट पोजीशन का मतलब ये होता है कि आप कहीं पे भी से नॉर्मली स्टैट की फर्स्ट ऑफ ऑल जरूरत क्या पड़ती है? मान लो कोई कोई एकदम इमरजेंसी पेशेंट आया, बोले कि अभी 2 मिनट में 5 मिनट में रिजल्ट करके दे दो। अभी हमारा ऑलरेडी इंस्ट्रूमेंट चालू है, वो अपना जिस हिसाब से हमने स्केड्यूल किया है उस हिसाब से वो रिजल्ट देगा, राइट? अभी हम उसमें बोलेंगे तो स्टैट पोजीशन का बेनिफिट क्या है कि हम वो पर्टिकुलर सैंपल लेट्स से 49 पोजीशन पे वो पेशेंट का सैंपल रखा, राइट, एंड उसको स्टैट अपने इंस्ट्रूमेंट में क्लियर कर दिया, तो वो बाकी का पहला रिपोर्टिंग छोड़ के पहले ये वाले का रिपोर्ट दे देगा हमें। ओके, दैट इज कॉल्ड अ बेनिफिट ऑफ स्टैट पोजीशन। कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट में सिर्फ वन और फॉर 2 पोजीशन ही स्टैट पोजीशन होती है, जबकि हमारे इंस्ट्रूमेंट में ऑल 60 पोजीशन कैन बी अ स्टैट पोजीशन। यानी कोई भी 60th पे रखो, 50th पे रखो, 12th पे रखो, कहीं पे भी पेशेंट का सैंपल रखो और उसको स्टैट सिलेक्ट करो, तो पहले उसका प्रोग्रामिंग करके देगा, उसका रिजल्ट करके देगा। समझ में आ रहा है एवरीवन? मुझे सबके कैमरास बंद दिख रहे हैं। यस, अनिकेत जी समझ में आया? बलविंदर जी, जी मैम। वेंकटेश, आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ मैम, किसी भी पोजीशन में हम लोग सैंपल को रन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, मोस्ट अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज अपना रिएक्शन वॉल्यूम इज जस्ट 210 माइक्रोलीटर, यानी 1 ml में 100% 4 टेस्ट तो हो ही सकती है, करेक्ट? रिएक्शन होने के लिए हमें सिर्फ 210 माइक्रोलीटर सैंपल चाहिए, मतलब सैंपल या रिएजेंट मिक्स होके। इसमें कोई फीचर्स में कोई डाउट नो मैम, किसी को? क्लियर। वेरी गुड। नाउ हम हमें इसको फरारी क्यों बोलते? फरारी भी इटाली में बनती है, राइट? इटली, इटाली, जो भी बोलो आप। सिमिलरली हमने एडिफ करके कंपनी है, ठीक है, उनके साथ टाई अप कर किया है जो इटली बेस्ड है, और हमारा इंस्ट्रूमेंट भी इटली से इंपोर्ट होता है।
Okay, so that's why we call as a Ferrari of our lab. ये इटली में मैन्युफैक्चर होता है या यहाँ पे नहीं नहीं, मुंबई? यहाँ पे नहीं होता है, हम इंपोर्ट करते हैं स्पेरा। मैम हम लोग का फुल्ली ऑटोमेटिक भी तो यहीं पे मैन्युफैक्चर होता है ना? नहीं होता है अर्षद जी, हम वही मैं बोल रही हूँ, फुल्ली ऑटोमेटेड हम इंपोर्ट करते हैं। ओ हम कुछ आई भी सी मैम। इंस्ट्रूमेंट में कुछ भी हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, सब इंपोर्ट होता है। वो बायोकेमिस्ट्री सेमी ऑटोमेटिक भी सब? ओके मैम। ठीक है, इन केस 10 मिनट्स में कंप्लीट मीटिंग कंप्लीट हो जाता है तो हम सेम लिंक पे ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं हुआ आई विल जनरेट अ न्यू लिंक। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। सो हमारा स्पेरा बेटर कैसे है? फर्स्ट, इसका जो रिएजेंट ट्रे है, ठीक है, उसमें आपको 50 पोजिशंस है। और ये जो है बड़ी बॉटल्स की छोटी बॉटल्स की उस मिला के 50 पोजिशंस है। देन मल्टीपल डिस्क प्रोग्रामिंग पॉसिबल। मल्टीपल डिस्क क्या होता है? नाउ हमें ऐसे लगे कि सिर्फ 50 पोजिशंस है और मेरे पास उससे ज्यादा है, तो क्या करेंगे? तो इंस्ट्रूमेंट हमारा ये काम बता, हाई सॉफ्टवेयर, HI, हाई। हमारा सॉफ्टवेयर का नाम है हाई। हाई सॉफ्टवेयर में हम वर्चुअली प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। यानी एक्चुअल में भले एक ही डिस्क है पर हम डिस्क 2, डिस्क 3 वैसा प्रोग्राम कर सकते हैं। और जो एक्स्ट्रा पैरामीटर्स हैं वो सेकेंड और थर्ड डिस्क में डाल सकते हैं। होप आई एम मेकिंग सेंस? यस। सो वर्चुअल प्रोग्रामिंग पॉसिबल है। मोस्टली रिएजेंट ट्रे आप अलग से, इसका जो पावर कंजप्शन है, इसका जो पावर बटन है वो अलग से है। इसका मतलब क्या होगा कि मान लो पूरा दिन में पूरा काम खत्म हो गया, इंस्ट्रूमेंट को शट डाउन कर दिया, अभी इंस्ट्रूमेंट शट डाउन करेंगे तो पूरा सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। तो ऑन बोर्ड जो रिएजेंट फ्रिज है, हमारा ये फ्रिज को, रिएजेंट को तो ठंडा रखना पड़ेगा ना, नहीं तो बिगड़ जाएगा। तो ये जो रिएजेंट ट्रे है वो भी टेम्परेचर, इंस्ट्रूमेंट बंद हो गया तो पावर सप्लाई बंद हो गया, पावर सप्लाई बंद हो गया तो रिएजेंट डिटोरिएट होने लगेंगे। हमारे यहाँ वैसा नहीं है, हमारे यहाँ पे दो इंडिविजुअल अलग अलग स्विच दिए हुए। पावर बटन अगर आप बंद भी कर देंगे तो रिएजेंट ट्रे के लिए पावर सप्लाई का एक अलग बटन है, अगर आप वो ऑन रखेंगे तो भले इंस्ट्रूमेंट बंद है, रिएजेंट ट्रे ठंडा का ठंडा रहेगा। बाकी कंपनीज में क्या होगा, जैसे ही खत्म हुआ वो पूरा ट्रे उठा के फ्रिज में रखना पड़ता है, राइट? नहीं तो रिएजेंट खराब होंगे। हमारे में ऐसा नहीं है, आप रिएजेंट ट्रे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ही छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ ऊपर से हमने उसका कवर भी दिया हुआ है, राइट? ये कवर है, कवर होने से कुछ कंटामिनेशन अंदर जाएगा नहीं। ये वैभव समझ में आ रहा है? यस मैम। हम्म। नेक्स्ट इज सैंपल ट्रे। सैंपल ट्रे, जैसे रिएजेंट बॉटल्स और रिएजेंट ट्रेज है वैसे सैंपल ट्रे है। सैंपल ट्रे भी रिमूवेबल है। ओके, नहीं मतलब नहीं, इसमें क्या होता है बेसिकली पूरा का पूरा ट्रे उठा के आप रिमूव करके रख सकते हैं। इसमें जैसे मैंने बताया सारी पोजीशंस को हम स्टैट पोजीशन कंसिडर कर सकते हैं। मल्टीपल वर्चुअल सैंपल डिस्क कैन बी प्रोग्राम, है ना? यहाँ पे भी सैंपल डिस्क ज्यादा प्रोग्राम कर सकते हैं, यानी ऑलरेडी इंस्ट्रूमेंट चल रहा है, 60 सैंपल ऑलरेडी लोडेड है, पर और 60 सैंपल्स आके पड़े हुए हैं, तो हम वर्चुअल प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। एक और सैंपल डिस्क ऐड की सिस्टम में, कंप्यूटर में, फिजिकली नहीं कर रहे हैं, वर्चुअली कर रहे हैं। वर्चुअल करने से क्या होगा, हम प्रोग्रामिंग करके रख सकते हैं कि 61 नंबर का सैंपल को ग्लूकोज OT-PT करना है, 62 नंबर के सैंपल को TG कोलेस्ट्रॉल OT-PG ग्लूकोज सब करना है। वो प्रोग्रामिंग हम पैरेलली करते रहेंगे, इंस्ट्रूमेंट अपना काम करता रहेगा। जैसे ही फर्स्ट 60 के रिजल्ट आ जाएंगे, वो बाकी जो जो प्रोग्रामिंग किया है वो सैंपल्स उसके ऊपर लोड कर देंगे, वो भी करने लगेंगे। ओके, सो वर्चुअल प्रोग्रामिंग का ये बेनिफिट है कि आपको अटकने की जरूरत नहीं है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, 60 सैंपल्स हो तब तक वो टेक्नीशियन बैठा रहता है,
अरे जब तक इंस्ट्रूमेंट चल रहा है आप दूसरा प्रोग्रामिंग करके छोड़ दो। ओके, सो दैट इज इतना यूजर यूजर फ्रेंडली है सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट इज सैम्पलिंग आर्म। ये सैम्पलिंग आर्म बोलते हैं इसको। ये पूरा घूम घाम के पूरा 360 डिग्री घूमता है, वो गोल 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 घूमता है। ओके, घूमने से इसके ऊपर ना ये एक हमारा प्रोब है, ये इसको प्रोब बोलते हैं, सैम्पलिंग प्रोब। और नीडल, ये नीडल रिएजेंट लेने का भी काम करता है, सैंपल लेने का भी काम करता है। ठीक है, एनी डाउट्स इन दिस? कुछ डाउट है प्लीज? ओके, सो बेसिकली हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये सैम्पलिंग आर्म के ऊपर सेंसर्स लगे हुए हैं। ओके, लिक्विड लिक्विड डिटेक्शन, कैपिटेटिव लिक्विड लेवल डिटेक्शन के डिटेक्टर है, और शॉक डिटेक्टर है। शॉक डिटेक्टर का क्या होता है, कभी कभी मान लो हमने पेशेंट सैंपल लोड किया है ना। अभी लोड किया है हमने वो कप में, छोटा कम सैंपल था, कप में लोड कर दिया, पूरा टेस्ट ट्यूब नहीं लोड किया है। और हम भूल गए, अभी कप सिलेक्ट करना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, कप का साइज छोटा होता है, ट्यूब का साइज बड़ा होता है। वो जैसे अंदर लेने जाएगा, वो ट्यूब समझ के लेने जाएगा तो कप के साथ ठुक जाएगा। बट हमारे यहाँ पे नीडल शॉक डिटेक्टर है। नीडल शॉक डिटेक्टर होने से उसको पता चल जाएगा कि ये कम वॉल्यूम है, वॉल्यूम कम है, तो वो जाके उसके ठोकेगा नहीं, और हमारा जो प्रोब है, ये प्रोब वो बच जाए। ओके, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट इज, दिस इज अ रिएक्शन ट्रे। रिएक्शन ट्रे यानी यहाँ पे आपका, जो मैं बोल रही थी ना क्यूवेट्स रखना होता है, तो यहाँ पे हम सिंगल इंडिविजुअल क्यूवेट्स रख सकते हैं। ठीक है, बायोनेक्स का क्यूवेट्स रहता है। बायोनेक्स का बेनिफिट यह है, क्या है कि एक क्यूवेट से आप 30,000 टेस्ट कर सकते हैं। ओके, यानी एक क्यूवेट अगर आपने यूज किया है, रखा है, तो आप 30,000 बार इसको यूज कर सकते हैं। इतना अच्छा क्वालिटी का है। बाकी किसी सी इंस्ट्रूमेंट ना बहुत बहुत सेंसिटिव होता है। अगर जो ट्यूब, जो क्यूवेट है, वो बहुत स्टिकी हो गई है, धुंधली हो गई है, तो इंस्ट्रूमेंट नॉर्मली उसको डिस्कार्ड कर देता है। बट बिकॉज हमारा बायोनिक्स क्यूवेट्स है, जो 30,000 टाइम्स हम यूज कर सकते हैं, तो इसमें ये सारे जो कॉस्ट है, हिडन कॉस्ट है, वो बच जाते हैं। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंटली हीट ट्रांसफर इज बाय एयर। हीट ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, नॉर्मली जब भी हम रिएजेंट देखो ठंडा होता है ना, और सैंपल अपना जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे है, अभी हम फॉर ऑप्टिमम रिजल्ट वी हैव टू इंश्योर दैट वो मिक्स हो प्रॉपरली, है ना। कुछ कुछ काइनेटिक रिएक्शंस होते हैं, कुछ कुछ रिएक्शंस होते हैं जिसमें हमें पता है ना ठंडा चीज प्रॉपरली मिक्स नहीं होता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे हम, जैसे ही रिएक्शन ट्रे होता है, वहां पे आजू बाजू, यहाँ पे ट्रे के अंदर गर्म हीट, गर्म हवा फेंकता है इंस्ट्रूमेंट, जिससे क्या होता है, गर्म हीट के कारण जो रिएजेंट आपका ठंडा हो गया था हमारा, क्योंकि रिएजेंट हम ठंडा रखते हैं, सैंपल ट्रे गर्म है, वो जरूरी है, क्योंकि नहीं तो रिएक्शन कम होगा, तो हमें सारे रिजल्ट फॉल्सली लो मिलेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट इज हमारा वॉश स्टेशन है। वॉश स्टेशन यानी जहां से सब धुलाई बुलाई होती है, जो भी ट्यूब्स, जो भी क्यूवेट्स खराब हुए हैं, वो कैसे धुलेंगे, तो ये वॉश स्टेशन से। ठीक है, अगर आप इंस्ट्रूमेंट देखेंगे तो यहाँ पे ये वॉश स्टेशन, इसे वॉश स्टेशन कहते हैं। यानी प्रोब जो है वो घूम घूम के सैंपल लेगा, रिएजेंट लेगा, और जो चीज हो गई है, जिसका रिएक्शन हो गया है, वो यहाँ पे वॉश स्टेशन पे जाके वॉश हो गए, फिर वापस हम वो क्यूवेट्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज वी हैव दिस हाई सॉफ्टवेयर। ओके, दिस इज a software which is very user friendly. This will it's a touch screen, and it has two-way interface, यानी हम मल्टीपल लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, एनी डाउट्स इन दिस? किसी को कोई डाउट है इस पैरा चीजें समझने में? See, नो। now this is something very repetitive.
ठीक है, ये मैं ब्रोशर आपको सेंड करूंगी वंस वी डिस्कनेक्ट। आप उसको वापस गो थ्रू कर सकते हैं। किसी को कोई भी डाउट हो मुझे 1-to-1 में भी पिंग करके पूछ सकते हैं। यस, एनीवन हैज एनी डाउट्स? नो मैम। नो ओके मैम। ओके ओके, तो देन वी विल नॉट कंटिन्यू, पर वापस रीजॉइन होने की जरूरत नहीं है। ओके, इफ द मीटिंग एंड्स लेट इट बी। आई विल शेयर यू द ब्रोशर राइट आफ्टर वी डिस्कनेक्ट द कॉल। ठीक है, गो थ्रू द ब्रोशर वंस अगेन, इफ यू हैव एनी डाउट्स गेट बैक टू मी।